Rohit, can we start? Okay, yes. So now I am requesting Damija ma'am to Yeah, kindly start this session, please. Over to you, ma'am. yeah. So, good afternoon to all of you, and welcome to all of you for joining this webinar, which we are conducting as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is an event which has been proclaimed by the Government of India, and it is an initiative to celebrate 75, in fact, commemorate 75 years of our independence and our glorious history of our people, culture, and achievements. So this event is dedicated to the people of India who have been instrumental in trying to bring India to what levels we are today. In fact, and of course, how we are forging ahead. We have so many commitments, or we have so many achievements in our this thing. We have the G20 was very successful, the Chandrayaan was very this thing, and we could even do something for the sun also. So this is celebration of all those activities which we have been doing and which we did it in the past also. We have a very glorious history, we have a very glorious traditions we have, which we all are very proud of. So this is a celebration of that. And then a lot of activities have been planned. Like we have seminars, we have webinars, we have exhibitions, then there are awareness camps. In Skill Council, we decided that we should have a series of webinars where we interact with learned people, with learned experts, and we learn more about the sectors in which we are working. We are working in almost all sectors, whether it is renewable energy, whether it is waste, water. I tell you, sustainability is our prime, the SDGs. We have had very good lectures on SDGs where we could connect and know more about this sector. So this is how, and I think this is Mr. PB Singh will correct me what is the exact, because we have almost reached 95 or 96. We plan to do 100. So you can just imagine how, an in-depth, activity has taken place. And we have been very fortunate that we are, we have learned a lot wherever we have, and today we have somebody very special. So that I will mention later on. So I think sustainability, as I told you, we do training modules, we do training packs. I think Mr. Arpit must have told you when you visited us. And our activities are ranging beyond training also. We do a lot of developmental activity also. But the area which you are going to cover, we don't have much experience. So I welcome you, Shweta. It was very nice interacting with you prior to this thing. And we are very proud and we are very fortunate to have you among us and listen to you. Villages and urban areas, they are interconnected. I have visited so many villages around the country, around the world, and I tell you, you cannot say that they are exclusive. They are exclusive in the sense that the systems there are there for them. We cannot say that our civilization is just urban. It is both. And there's a lot of interconnection between both the urban areas and the rural areas. And we should be proud of that. So I'll be very happy and eager to listen to you. And I feel all the participants also, we already have touched some numbers and we'll be touching more numbers. And I welcome you again. And I would request Mr. Arpit, if you're there, if you could kindly welcome her also. Mr. Arpit? Yes, ma'am, he went to CEO. Okay. So he has already interacted with us. So now I request Mr. PB Singh to kindly introduce Shweta. And then we will be having a nice talk from her. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And for your information, today we are going to complete 98 series. Wow. Okay. And, so my number was low. I said 96, 98. Okay, good. Thank you, ma'am, for welcoming the speaker and other audience. Good afternoon, everyone. I'll welcome you all to the 98th series of the webinar. Skill Council for Green Job is organizing a series of webinars to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav as a part of India's celebration of 75 years of independence. In this series, SCGJ is inviting eminent and learned speakers in different sectors of sustainable development, renewable energy, and waste management,
so as to deepen in the understanding of recent development in these sectors. The first in the series was launched on 24th September 2021. Today we have uh, Ms. Sweta Avilas Bist, a very experienced learner distinguished speaker who will be sharing his expertise and experience on sustainable exchange, bringing ideas from village to city and cities to village. I would like to share her brief profile with all of you. Mrs. Sweta Avilas Bist is working as a independent consultant. She holds a bachelor's degree from St. Stephen's College, Delhi, and a MBA from SIBM, Pune. Sweta has 15 years plus experience working with social enterprises, NGOs, multilateral organizations, corporate, MSME, startup, and niche business. In 2011, she trained from the corporate to the development sectors. She has worked in the field of skill development, livelihood, and entrepreneurship with a focus on the environment, green jobs, and livelihood. She left her full-time jobs and city life in 2017 and now reside in the urban area of Dehradun. A believer of portfolio life, she works as an independent contributor to projects. Her peri-urban dwelling helps in the understanding communities up close and hence contributed to development projects holistically. She is one of the initial co-founder at Karta Connect Foundation. Now I would like to request Mrs. Sweta to start the presentation. Over to you, Sweta ji. Thank you, sir. Thanks a lot, Mr. Singh and Dr. Praveen. So I think the talk today is, as I was saying, is about how we look at sustainability from an individual point of view. And I'll just share my presentation also parallelly. Is my screen visible? Hello? Not now, ma'am. Okay. Yeah. Yeah. Is it visible now? Yes, yes. Yes. So, you know, this whole idea when I was there at the Green Sector Skill Council and about the conversation, I was giving it a thought that what is it that I really want to share, you know, if I've been given this platform. And this idea of an exchange that, you know, if there's an exchange of ideas between villages, cities, peri-urban area, what will it be? Because it is very important. हमारा जो एक रहन सहन है उससे हमारे प्लैनेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो एक समझना बहुत जरूरी है और हम क्या किससे सीख सकते हैं. So very quickly, sustainability, what is sustainability? How is it defined? And as per UN, it is the meeting the needs of the present and without compromising the ability of future generation. So like it is said, you know, there is enough for everybody's need, but not for everybody's greed. So what is the basic that we all require? रोटी कपड़ा मकान. आज इंटरनेट भी हो गया है और उससे बहुत परिवर्तन आ रहा है. जो एक शहर की रहन सहन है, जो एक गांव का रहन सहन है, उसमें कहीं ना कहीं इंटरमिंगलिंग हो रही है. कुछ बहुत अच्छे के लिए, कुछ शायद क्वेश्चन मार्क है. तो उसी के अराउंड पूरा ये डिस्कशन एक शेयरिंग एक्सपीरियंस है. मैं इसको ज्यादा फॉर्मलाइज नहीं रखना चाहूंगी क्योंकि ये हम सबकी जिंदगियों से वाकिफ रखता है. So I think I'm very proud to be an Indian when at COP27 this whole life mission was announced by our honorable Prime Minister. And it is in fact, if we look at the way Indian life has been, we have been very frugal. In fact, a lot of my close relatives, they stay outside the country, and there is a joke that how will you identify an Indian outside India?
So it's usually said that you will always find a plastic bag with a lot many more plastic bags. You know, that's how we have been, you know, sharing clothes and, you know, utilities, not just with the family member, but extended family members. Anybody who has grown in the country in the 80s and 90s, we have seen that life. So can we take the lead and tell the world that, you know, you have to have a lifestyle which is more pro planet. Now, just my background and why I think I can share my experience, because uh, I was born and brought up in a tier 2 city, and then education wise, work wise, I have stayed in multiple metros. And then, as it was in 2017, we decided to shift more towards Dehradun, and we were not too keen to shift to a city again. So therefore, we decided a place outside Dehradun. और गांव में रहे, मेरा बेटा गांव के स्कूल में गया, हमने एक तरीके से गांव की जिंदगी जी, तो बहुत कुछ समझ में आया. और फिर वी आर राइट नाउ इन अ मोर अर्बन एरिया, पेरी अर्बन जिसे हम बोलते हैं. मैं 100 मीटर की डिस्टेंस पे जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी कॉफी मिल जाती है. मैं 100 मीटर की डिस्टेंस पे दूसरी तरफ जाऊंगी तो खेत में से गन्ना खाने को मिल जाता है. और कहीं ना कहीं हमको ये जिंदगी बहुत पसंद भी आ रही है. And as I'm talking, maybe in next 6 months, I'll be back in a village, because that's where finally we have decided कि हम यहीं रहेंगे और अपना बेस बनाएंगे. तो आज के इंटरेक्शन को, because we have limited time, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने. एक तो पहले पानी का मुद्दा, और उससे ही मेरा जुड़ा बहुत लंबे समय से रहा है. कुछ एक्सपेरिमेंट्स खुद की लाइफ में करके देखे कि क्या ऐसा संभव है. फिर एक्सपेरिमेंट विद वेस्ट, बाय एंड लार्ज सेग्रीगेशन, and then एक sustainable space. I don't want to call it a city or a village or a peri-urban, मगर एक sustainable space क्या होनी चाहिए, मेरी wish list क्या है कि ये एक sustainable space है मेरे हिसाब से. तो I would like to share a video with all of you before we go forward, and I think I have to make some changes so that you can okay. एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का सावर रख दिया. हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ. So before we go further, किसी को कुछ शेयर करना है यहाँ पे after seeing this visual? I think It's an in the last maybe people or comments. Please continue. Okay, sir. So पानी हम सबके लिए जरूरी है, ये तो हमको I think I have lost the sharing. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So 2018 में एक खबर आई कि
केप टाउन इज नियरिंग डे 0। और वो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, वो खबर हिंदुस्तान में इसलिए बनी क्योंकि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम भी वहां पे ट्रैवल कर रही थी एंड दे वर आस्क्ड टू लिमिट देयर शावर टाइम। सो ये जो एक ख्याल है कि आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे 0 वाटर डे, इन माई लाइफ इट केम अ लिटिल अर्लियर। सो 2003 की बात है। 2002 में मैंने बेसिक कोर्स माउंटेनरिंग में किया एंड आई यूज्ड टू वर्क एज आउटडोर इंस्ट्रक्टर विद कॉर्पोरेट एंड विद youth and children. And it was the May of 2003. We were in the Yamuna area. The Tons is a tributary of Yamuna. Us area mein we had taken children out for an outdoor camp. Now, as it would have been, there were some issues and we were not lost per se, मगर हम एक अलग direction में चले गए. And we were on जो एक हम धार बोलते हैं, which is like a flat area on the mountain. Now, since we were delayed, our reserves were limited, right? And as instructors, we had to be very careful because we know the situation. So शायद मैंने शाम के 4 बजे आखिरी पानी का सिप पिया होगा और उसके बाद we were trying a night shelter. We tried to get some water, which was used for cooking and for giving it to children. It was a decently sized group. We had some 15 plus children with us and another 5 adults. So as it would have been, we did find a small source nearby. हमने instructions भी दिए बच्चे को कि आप प्लीज इसको पानी को बहुत संभाल के रखिएगा। अब कहीं ना कहीं वो बच्चे, क्योंकि शहरी बच्चे, यही चीज एक गांव के बच्चे को बोलते, वो एक अलग तरीके से देखता। शहरी बच्चे थे, सुबह जाके 2 लड़कियों ने उसमें फेस वॉश कर लिया, साबुन हो गया सारा। So we were left with no water and then we started walking because we knew कि कहीं जब नीचे जाएंगे हमें पानी मिलेगा। तो जो ये एक्सट्रीम आपको दिख रही है, इसको देख के आज भी मेरे को जो एक खुशी मिलती है अंदर से, बिकॉज समवेयर अराउंड 3 o'clock नेक्स्ट आफ्टरनून हमको ऐसा एक्सट्रीम मिल पाया, क्योंकि रिंगाल का जंगल था, वहां वैसे भी पानी का कमी रहता है। मगर लगभग वो जो 24 घंटे बिना पानी के, क्योंकि हमारे पास जो भी पानी था हम कोशिश कर रहे थे बच्चों को दें, क्योंकि हम लोग आउटडोर्स में सर्वाइवल सीखते हैं, हमें पता है कि आप पानी के बिना कब तक जा सकते हैं। मगर वो एक जो पानी की कमी थी, उसने बहुत ही ज्यादा एक कहीं ना कहीं मेरे जहन में कुछ छोड़ा। और आज 20 साल हो गए हैं, आई ट्राई एंड डू समथिंग कॉल्ड अ हाफ अ बकेट बाथ। मुझसे खर्च ही नहीं होता, वो एक हैबिट सी भी बन गई है। और कभी अगर हेड वॉश करना है, कुछ करना है, तो वो ज्यादा हो जाता है, मगर उससे संभाल के फिर बाथरूम साफ किया जाता है। और उसके बाद जब हम दिल्ली में थे तो बेटे को कभी समझाना होता था कि नहीं पानी मत वेस्ट करो, तो वो लड़ते थे, क्योंकि हर बच्चे को शावर करने में बड़ा मजा आता है। तो मैं उन्हें बस्ती में ले जाती थी, जहाँ पर भी लाइन में लोग खड़े हुए हैं बाल्टियों के साथ। एंड बस एक बार उन्होंने लड़ाई जब देखी वहां पे, तब अपने आप उन्होंने मुझसे, बहुत छोटे रहे थे वो, 5-6 साल के ही थे, मगर बोला कि हाँ मम्मा वी शुड सेव वाटर। और फिर जब 2017 में हम गाँव में आए, तो एक जो चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लगी कि वहां पे पानी को एज अ कम्युनिटी रिसोर्स देखा जाता है। मेरे लिए नहीं है, मेरे शावर के लिए नहीं है, खाली मेरे यूटिलाइजेशन के लिए नहीं है, ये कम्युनिटी का एसेट है। क्योंकि ना केवल मुझे अपने खेतों में पानी देना है, मुझे अपने डंगर यानी कि लाइफ स्टॉक को पानी देना है, मेरे को अपना कंजम्पशन उसी हिसाब से लेके चलना है। एंड इसलिए जो एड हमने देखा, ये एड मैंने पहले भी देखा था, मैं आज जब इसको देखती हूँ मुझे 2 चीजें बिल्कुल अच्छे से अलग से दिखती हैं। पहली बात, जब वो शावर गिरता है और नीचे वो पानी को बहते हुए देखता है, तो उसको एक दर्द सा उसके चेहरे पर आता है कि ये तो वेस्ट हो, ये तो जा रहा है। और वो अपने लिए नहीं रखता, खाली दूसरा जना आता है वो भी पानी पीता है। तो अंत में यही बोला जाता है कि पूरे गांव ने पानी पी लिया और यहाँ एक शहरी का स्नान ही खत्म नहीं हुआ। तो और जब ये 2018 में न्यूज आई, तब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि एक ये बहुत बेसिक सी चीज है, हम सबको नहीं बोलते हैं जो कर सकते हैं, मगर क्या हम हफ्ते में एक बार आधा बाल्टी से पानी से नहा के देखें कि हम नहा भी सकते हैं या नहीं। और दूसरी चीज जो ये एक ओवरऑल अगर हम मीडिया देखते हैं, उसमें बहुत ही इसको ग्लैमराइज किया जाता है, और उसका जो एक रिजल्ट हम देख रहे हैं, जो मैंने शुरू में बोला कि अभी डिफाइनिंग लाइंस बहुत अलग अलग होती जा रही हैं,
यहाँ पर भी एक एस्पिरेशन आ गई है कि नहीं घर में शावर जरूर होना चाहिए। अभी जिस घर में मैं रहती हूँ हमारे यहाँ शावर नहीं है, ना हम अपने आने वाले घरों में लगाएंगे। मगर ये बहुत छोटी सी बात है, मगर अगर इसको गहराई से सोचा जाए तो it's not just about taking that half a bucket bath. It's about that whole understanding that yes, water is not only for me. ये हम सबकी वो है। इसके अलावा काफी अभी जैसे हम लोग का घर भी बन रहा है तो वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, और बहुत अच्छा लगता है सुन के। अगर हम देखेंगे कि काफी जगह मनरेगा से काफी कम्युनिटी लेवल पर पानी के स्रोत को रिजुनवेट किया जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मगर एट एन इंडिविजुअल लेवल ये कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे राइट हैंड साइड पे एक आप देखेंगे कि एक खाली पैनल लगा हुआ है और खाली ये शावर लगा हुआ है, नली नहीं है यहाँ पे। और मजे की बात ये है, यहाँ पर जब हम गए, यहाँ पे रुके, उस दिन वहां पानी का पाइप फट गया। तो ये जो बाल्टी है, पूरे 45 विलास थे उधर, वहां पे बाल्टी ही नहीं थी कहीं। ये बाल्टी स्पेशली मंगवाई गई है और वहां पे पूल था, तो पूल में से पानी निकाल निकाल के मैंने सबको बोला कि आप, तो हम इस चीज को क्यों एक लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मानते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों हमें लगता है कि शावर ही ज्यादा प्रीमियम वो है। और ये अनफॉर्चुनेटली अब गांव में भी ये कल्चर आने लगा है, बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं, मगर जहां पे भी जिसको हम पेरी अर्बन बोलते हैं, आप देखेंगे वहां पे दिस इज एन एस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं हमें इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे पानी अगर एक है भी, और ये फिर मैंने गांव में दोबारा देखा कि पानी को हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो बर्तन धोएंगे, सब्जियां धोएंगे, वही पानी वो डंगर को डाल देंगे। तो क्या हम ऐसा अपनी लाइफ में अपना सकते हैं कि जो पानी हम यूज भी कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि आप, जब मैं मेरे को हेड वॉश लेना होता है तो उस पानी को मैं कलेक्ट करके बाथरूम साफ कर देती हूँ, वॉशिंग मशीन का पानी कलेक्ट कर दो, आरओ का पानी बहुत वेस्ट होता है। और हमने आरओ अभी हटा दिया है अपनी लाइफ में से, मगर शहरों में मैं देखती हूँ कि वो आरओ लगा हुआ है और वो इतना बढ़िया पानी है, वो सारा नालियों में जा रहा है। तो क्या हम इस चीज के अराउंड सोच सकते हैं? तीसरा, ये मैंने पुणे में बहुत अच्छा देखा कि वहां पर सब कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पुराने घर बन गए हैं बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता है। इनफैक्ट ये एक वाटर हार्वेस्टिंग का स्मॉल सिस्टम जो है यहाँ पे हम अपने गांव में भी वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट कि क्या खाली एक ड्रम के साथ हम एटलीस्ट कुछ पानी तो कलेक्ट करें, क्योंकि इतना पानी हमारा देश इतना लकी है कि इतना पानी, इतना अच्छा बारिश होता है, मगर हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। सो गवर्नमेंट जो कर रही है वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, मगर अपने पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक गांव का जीवन है वो हमें ये सिखाता है कि नहीं, पानी एक खाली आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। पानी की बचत कैसे करनी चाहिए। और वहां पे नदियां बहती हैं, ऐसा नहीं है पानी की कमी है, मगर फिर भी वहां पे एक जो कल्चर है कि पानी को बचाना है, उसे हमें कहीं ना कहीं शहरों में लाना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन आई ट्रैवल, एंड दिस इज अक्रॉस, जो ये बीच की इमेज है, आप यकीन नहीं करेंगे, छोटा सा गांव है ये घनसाली से ऊपर उत्तराखंड में, और कहीं भी आप जाएंगे आपको हर जगह प्लास्टिक रहता है। तो कभी बहुत पहले पढ़ा था कि 5-5 हजार साल लग जाते हैं प्लास्टिक को गलने में, तो अंत में तो यही रह जाएगा। हमारी उम्र तो औसतन 100 साल है, पता नहीं कितना हम लोग जिएंगे, कितना ह्यूमन रेस जिएगी। मगर हो सकता है कि जब एक्सकवेशन होगा, पहले आयरन एज हुई थी, स्टोन एज हुई थी, हमारी एज को प्लास्टिक एज कहा जाएगा, क्योंकि यही रह जाना है। अब प्लास्टिक को लेके बहुत कुछ कहा जाता है कि नहीं, एसेंशियल भी है, डेफिनेटली एसेंशियल है। प्लास्टिक ने हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाया है, मगर कहीं ना कहीं ये एक खतरनाक स्थिति की तरफ भी जा रहा है। देयर आर सम न्यूज आर्टिकल्स आई वांट टू शेयर विद यू as latest as August 2023, wherein microplastic हमारे हार्ट के टिश्यूज में भी मिले हैं, and these are all proper researches across the world कि it is getting in our body. So हमको ये लगता है कि नहीं, हमने तो बाहर फेंक दिया, हमारा कुछ नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर स्थिति है। और शहरों में कहीं ना कहीं पूरा म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू सेग्रीगेशन की बात होती है, सोसाइटीज में हो भी रहा है, कितना हो रहा है उसके ऊपर मेरे को टिप्पणी नहीं देनी है अभी, मगर ये हम सबकी प्रॉब्लम है।
और जिस दिन हम ये समझना शुरू कर देंगे कि हम सबकी प्रॉब्लम है, शायद हमारा एक नजरिया बदलेगा और हम वेस्ट सेग्रीगेशन को, उसके एंड यूटिलिटी को और गहराई से ले पाएंगे। मगर इससे पहले मैं एक बहुत जो ऑब्जर्वेशन मेरी रही है ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों में, एंड आई एम पर्सनल लेवल पे बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर उसका जो हैंडीकैप आ रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लाइक एनीबडी एल्स हमने अलग अलग डस्टबिन घर में रखे हुए थे, और ये आप अगर येलो वाले डस्टबिन में देखेंगे एक और ब्लैक प्लास्टिक लगा हुआ है। तो आप खाली यू आर नॉट जस्ट सेग्रीगेटिंग, यू आर एडिंग टू द प्लास्टिक। गांव में आके मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी कि यहाँ पर कोई भी बंद डब्बा नहीं होता है। तो आप अगर जैसे ऊपर देखेंगे इंसर्ट में, मेरा डस्टबिन अब ऐसा होता है। उसका सिंपल रीजन ये है कि या तो वहां पे डंगर होते हैं, गाय वगैरह हैं आसपास, या फिर वो खेत में उसको मिला के खाद बनाते हैं। सो जो एक सेग्रीगेशन हम शहर में कहते हैं कि नहीं, वहां पे आसान भी है। देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी शहरों में एक अपार्टमेंट में सेग्रीगेशन करना बड़ा मुश्किल है, एक छोटे घर में, मगर गांव में बाय डिफॉल्ट ये एक सेग्रीगेशन होता ही है। और ये मेरे लिए लर्निंग थी। मैंने खुला डस्टबिन जब से रखना शुरू किया है, 2-3 दिन, एक हफ्ते तक भी अगर प्लास्टिक वेस्ट, अगर ये ओपन वेस्ट रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी तो बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बन गया है। वहीं मेरा डस्टबिन है, वहीं एक छिपकली घूमती रहती है, वो अपना खाना खाती है, और बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है। पेस्ट कंट्रोल की घर में जरूरत नहीं है, क्योंकि छिपकली सारे कॉकरोच भी खा जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक रहने का तरीका है वो गांव आके ही हुआ, क्योंकि शहरों में तो हम छिपकलियों से डरते हैं, मगर गांव में तो फिर सांप भी है और जंगली सुअर भी है, तो वो डर भी खत्म होता चला जाता है। मगर जो बड़ा प्रॉब्लम मुझे गांव में दिखा, जो आप मिडिल वाले इंसर्ट में देखेंगे, यहाँ पे जब भी मैं किसी से बात करती, क्योंकि देखिए जिस गांव में हम थे वहां पे कोई कलेक्शन नहीं होता था, और मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ का प्लास्टिक जाता कहाँ है। मैं अपना सारा प्लास्टिक, जैसे आप लास्ट इंसर्ट में देखेंगे, सब कलेक्ट करके उस टाइम पे दिल्ली लेके जाती थी, जब भी गाड़ी से हम जा रहे थे, क्योंकि पूरे देहरादून में हमें कहीं भी श्रेडिंग यूनिट नहीं मिली जहाँ पे इसको श्रेड करके और दोबारा पैलेट्स बनाया जाता है। तो गांव में जब मैं भी पूछती थी किसी से, तो कॉमन जवाब, और आज तक भी ये मेरे पड़ोस के घर का इमेज है, यहाँ प्लास्टिक को जला दिया जाता है। क्योंकि प्लास्टिक जलाने के जो दुष्परिणाम है, जो डिसएडवांटेज है, यहाँ किसी को पता नहीं है। जितने भी लोगों को मैं बात करती हूँ, तो जो एक प्रॉब्लम निकल के आती है, जो मैंने आपको सबसे बोली, उनका कहना ये है कि देखिए अब कूड़े वाली गाड़ी भी आती है, वो मिक्स कर देती है, कम से कम हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, और अगर हम जलाएंगे नहीं तो ये कहाँ जाएगा। तो उसके आसपास भी हम कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कलेक्शन करके हम श्रेडिंग यूनिट तक कैसे ले जाएं, मगर ये कंप्लीटिंग द लूप, क्लोजिंग द लूप मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और यहीं पे मैं आपको 2002 का एक वाकया सुनाती हूँ। जब मैं अपना बेसिक कोर्स कर रही थी माउंटेनरिंग में, तो हम लोग लगभग 100 लड़कियां थी कैंप में, और वहां पे प्लास्टिक हो रखा था। तो हम कुछ 20 जन थे जिनको अंदर से लगा नहीं ये गलत है। हमने सफाई शुरू करी, यहाँ तक कि हमने यूज्ड सैनिटरी पैड भी उठा उठा के जमा किए। तो उसके बाद वो तो हमने भिजवा दिया वापस नीचे, मगर जब इसके 2002 में मैंने कुछ जो ट्रैकर्स हमारे कम्युनिटी में सीनियर्स थे उनसे बात करी कि हम क्यों नहीं इन मतलब ये हम भरने नहीं देंगे। तो तपोवन गोमुख के ऊपर का एरिया था, वो हम क्लीन करना चाह रहे थे, मगर सवाल यही उठा कि ये फिर आगे कहाँ जाएगा, क्योंकि वहां से दिल्ली लाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो क्लोजिंग द लूप, अगर इसके ऊपर हम एक विचार करें, और कुछ शहरों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पुणे में संस्थाएं हैं जो घर से आपका प्लास्टिक कलेक्ट करती हैं। तो ना केवल हमको इसको लोगों को समझाना है, हमने हर जगह 5 R सुनते हैं, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, मगर उससे किस तरीके से क्लोजिंग द लूप करें कि क्या क्या चीजें हम रीयूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऊपर देखेंगे, बहुत बार मैं प्लास्टिक फेंकती नहीं, जो पैकेजिंग है सबसे, और जहां पे भी मैं कूड़े में घुस घुस के जाती हूँ, जहां पे भी कूड़ा बहुत पड़ा हुआ मिलता है, जैसे ये वाला मैंने आपको दिखाया, यहाँ मैं खड़ी रही बहुत देर तक। यहाँ मैं लिटरली एक एक चीज मैंने डंडे से ले लेके देखी कि ये प्लास्टिक है क्या, जो हमारे लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ सारा पैकेजिंग है, चाहे वो आपकी चिप्स हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो पॉलिथीन हो, यही सब, क्योंकि जो भी चीजें बिक जाती हैं वो उठ जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप किसी भी कूड़े का ढेर देखेंगे, वहां पे आपको यही दिखेगा। तो और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो आप ये 3 बैग देख रहे हैं, येलो, व्हाइट एंड ब्लू,
ये मेरे घर का 2021 सितंबर से लेकर 2023 जुलाई तक का सारा पैकेजिंग प्लास्टिक है। इसमें ना बदबू आती है, ना इसमें कॉकरोच आता है। आप बस उसको कलेक्ट करके रखते जाइए और शेडिंग यूनिट में दे आइए। तो इन सब, और फिर ई वेस्ट बिकता है, जो भी आपका रीयूज हो सकता है, तो उसका अगर आप देखेंगे, पहली चीज रिड्यूस, अपना थैला लेके चलिए। ये कैंपेन हम लोग यहाँ पे रन भी कर रहे हैं अलग अलग स्लोगन के साथ, इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। आप सब्जियां लेते हैं, शहरों में आप देखेंगे कि उसको बिल्कुल सेलोफीन में रैप कर करके सब्जियों की लाइफ बढ़ा देते हैं। वही चीज आप घर में कर सकते हैं। हम लोग हाट से सब्जी लेके आते हैं और उसको पूरा जो प्लास्टिक है उसमें रैप कर करके, और जो भी प्लास्टिक है, नीचे दवाइयां हैं, दवाइयों को भी आप कलेक्ट की, खराब नहीं होने वाली चीजें हैं, बस एक हैबिट बनाने वाली बात है कि क्या हम इसे कलेक्ट करके, और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये एक शेडिंग यूनिट ही है, वहां पे उन्होंने कंप्रेस करा हुआ है, शेडिंग यूनिट है हमारे देहरादून में, वहां पर जाके हम दे आते हैं। तो एटलीस्ट एक लूप खत्म हो रहा है, एक खत्म क्लोजर की तरफ आ रहा है। तो जो ये सेंसिटाइजेशन अबाउट प्लास्टिक 5R है, ये शहरों के अलावा गांव में सब जगह होना बहुत जरूरी है। गांव में जो एक वेस्ट कलेक्शन का इशू है, ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पे कहीं एक जंगल में क्लीनिंग हो रही थी और युवा लोगों ने अपना एक एनजीओ बना के क्लीनिंग कर रहे थे, मगर उनसे भी जब मैंने सवाल किया कि इसका आप क्या कर रहे हैं, जबकि अब देहरादून में शेडिंग यूनिट्स हैं, उनका वही जवाब था कि दीदी हम इसे जला देते हैं। तो उसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते हैं, और ऐसी जगहों में पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि बहुत लंबे लंबे बहुत स्ट्रेचेस होते हैं, तो कहीं पर भी चलेगा वो सारे में बदबू नहीं फैलती है। जबकि जहां मैं रह रही हूँ यहाँ पे किसी भी घर में जलता है, पता चल जाता है कि आज कहीं प्लास्टिक जल रहा है, जाके मैं बात करती हूँ, मगर फिर वही बात कि हम तो कर देंगे और क्या होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ व्हाट आई सेड, कि अगर हम ये एक सिस्टम देखते हैं अपने आसपास कि भाई एक रूरल एरिया है, एक अर्बन एरिया है, और कहीं ना एक पेरी अर्बन एरिया है, इनके आपस में एक्सचेंज हो ही रहा है। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड्स में बोलेंगे तो आज की तारीख में आप किसी भी पेरी अर्बन एरिया में जाएंगे, वहां पे भी आपको अमेजोन की डिलीवरी हो जाएगी, वहां पे भी जो लोकल रेस्टोरेंट्स है वो फूड सर्विस खा रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल का जो एक ट्रेंड है वो अगर यहाँ आ सकता है, तो शहरों में जो इतना अवेयरनेस होता है, शहरों में जो एक हर चीज को एंड रिजल्ट तक देखने की कोशिश करते हैं, वो गांव में क्यों नहीं हो सकता। सिमिलरली जैसे गांव में हम शुरू से ही वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं, शहरों में हम सोसाइटीज में क्यों नहीं करते हैं, वहां पे हम आराम से एक एरिया डेजिग्नेट कर सकते हैं। देयर आर कुछ लोगों से मेरी बात शहरों में भी हुई, वेलफेयर एसोसिएशन से मेरी बात हुई, तो वो हमेशा कहते हैं कि गंदगी हो जाती है, मगर अभी देयर आर इनफ सॉल्यूशंस जिसमें कंपोस्ट किट्स आती हैं पूरी बड़ी बड़ी, और आप अपना पूरा सोसाइटी का वेट वेस्ट उसको कंपोस्ट कर सकते हैं। या फिर आप दिल्ली में जैसे वसुंधरा एनक्लेव एरिया में मैं रहती थी, तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा एक अभियान चलाया था, जिसमें हर सोसाइटी से उन्होंने हमें बस बोला था कि अंडे, प्याज और लहसुन के छिलके आप ना डालिए इसमें, और आप इसको कलेक्ट करिए। गेट पे एक बिन रहता था, एक ताज, स्टील का ताज रहता था, और वहां पे गौशाला को जाता था। बात सारी ये है कि ये इनिशिएटिव्स जब होंगे और अच्छे लेवल पर होंगे, ये कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी का जरिया भी बनेंगे। और मैं चाहूंगी कि जो हमारी स्किल काउंसिल है उसको, उसके बारे में वो थोड़ा विचार करें कि किस तरीके से हम, if not full-time job, but they are definitely opportunities for these people to get some earning out of the whole thing. बहुत सारी जगह पे, एंड आई वाज टॉकिंग टू अर्पित, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर अगर हम देखें लाखों गांव हैं हमारे, वी आर ऑलमोस्ट 700 डिस्ट्रिक्ट्स, क्या सब जगह पे एक सिस्टमैटिक तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। कमिंग टू सस्टेनेबल स्पेसेस, एक अगर हम ट्रांजिशन समझें कि एक गांव से शहर क्या होता है और क्यों जाता है कोई, ये ललितपुर, चंबल, बुंदेलखंड एरिया में बंट गांव का फोटो है। वहां मैं किसी काम से फील्ड सर्वे के लिए गई थी और वहां का ये सोत्र है। तो ये जो बच्चे हैं उनको मैंने देखा, ये यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये आप कितना कमा लेते हो, तो वो ठीक ठाक कमा भी, उस गांव की जो फाइनेंशियल डिटेल्स हमको समझ में आई, उस हिसाब से ये बच्चे अच्छा कमा लेते थे, स्कूल करते ही सीधे यहाँ पर आ जाते थे। फिर उन्होंने बताया कि शहर से एक भैया आया था, उसने हमको ये काम सिखाया। और बात
दरअसल यही है कि गांव से लोग क्यों शहर की तरफ पलायन करते हैं, वो हमेशा आमदनी के लिए ही होता है। तो एक सस्टेनेबल स्पेस जब हम समझते हैं, क्या हम उसी एरिया में वहां की लाइवलीहुड्स बढ़ा सकते हैं? ग्रीन लाइवलीहुड्स हो गया, अभी मिलेट के ऊपर इतना जोर है, और भी तरीके हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जोहो करके एक कंपनी है, तो उन्होंने अपना बेस ही गांव में बना रखा है। तो मेरी विश लिस्ट ये है कि क्या हर गांव में नहीं, बट एटलीस्ट इन ब्लॉक लेवल कैन वी हैव अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज वी आर अ कनेक्टेड वर्ल्ड टुडे। क्योंकि आमदनी रहेगी तो लोग भी वहीं रहेंगे, शहरों के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा जो एक मैंने, ये कोविड के टाइम की फोटोग्राफ है। तो हम लोग, जैसे मैंने बताया, हम लोग मेन शहर में नहीं हैं, और यहाँ पर हर घर में एक ऐसा दुकान रहता है। इसमें या तो दुकान बनाते हैं या भूसा रखते हैं, या फिर एक यहाँ का कहावत है कि यहाँ पे लेबर रखते हैं। तो जब पूरे इंडिया में पलायन की बात चल रही थी, माइग्रेशन हो रहा था, लोग 100 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल अपने गांव जा रहे थे, मैं रोज इन लोगों से जाके मिलती थी। इनको कुछ खाना वगैरह भी, ज्यादातर दालें मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर के ही 5 से 10 किलोमीटर रेडियस में मैंने 100 लोगों को कनेक्ट किया उस टाइम पर। और मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि भैया, आप इतना न्यूज में आ रहा है, सब लोग जा रहे हैं, आप गांव नहीं जाएंगे? तो उनका एक, एंड दिस वाज अ वेरी यूनानिमस रिप्लाई आई गॉट, कहते दीदी यहाँ पे क्या बुराई है, हम खुला खा रहे हैं, खुला नहा रहे हैं, काम नहीं है मगर मिल जाएगा, कभी ना कभी तो शुरू होगा। सो देयर वाज नो अर्जेंसी। And then at that time I was part of a volunteer policy group also, so we were discussing migration a lot. And एक जो चीज बहुत क्लियरली निकल के आई, क्योंकि यहाँ पे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी इनको फिर भी मिल गया। It is because cities, unfortunately, and I may sound rude, cities are very harsh on migrants. So ये बेचारे गांव से आते हैं शहर आमदनी की खोज में, और शहरों में फिर मैंने कुछ शहरों के इस्लाम में भी बाद में जाके बात करी, तो उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आया कि दीदी यहाँ तो हम बिल्कुल एक डब्बे में से रहते हैं, और रोज तो हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि सुबह खाना खा के लोग निकल जाते हैं अपनी दिहाड़ी पर, शाम को आते हैं थक कर सो जाते हैं। जब इनको लॉकडाउन में रहना पड़ा, उसी एक छोटे से कमरे में 10-10, 20-20 जनों को रहना पड़ा, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, और ऊपर से ये आपने सुना भी होगा, अफवाह होगी कि ये तो हवाई जहाज से आई है बीमारी। तो कहीं ना कहीं उनके पास चॉइस ही नहीं थी। नॉट टू मच अबाउट कोविड, बट अबाउट कि यहाँ हम कैसे रहेंगे, गांव में कम से कम खाने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी मैं इनको अपनी तरफ से बांट रही थी, मगर इनके जितने भी ज्यादातर लोगों के मकान मालिक थे, कहीं ना कहीं इनको खाने पीने का कमी नहीं हुआ। तो यही दोनों चीजें सोचते हुए कि क्या हम जो हमारे पेरी अर्बन एरियाज हैं, उनमें किस तरीके से हम आमदनी के जरिए बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर विचार करें। और अपने लेवल पे हम लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में हम ट्राई करेंगे अभी। मगर इसके साथ साथ जो मेरी एक संस्था थी जिसके साथ मैंने 6 साल काम किया, कर्मयोग, हमने कोलकाता में ये बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे। अगर आप देखेंगे, ये एक इट्स अ ग्रीन विलेज, और अगर आप देखेंगे पिंक कलर की प्रॉपर, ये न्यू टाउन एरिया में एक प्रॉपर अर्बन एरिया है। सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बन रहा था, और एक ही हमें वहाँ के हितकों ने हमें नर्सरी लैंड दिया, और इसको हमने ग्रीन लर्निंग विलेज में कन्वर्ट किया। बट द मॉडल दैट वाज क्रिएटेड वाज कि जो बहुत से यहाँ पर हमने बैरिक्स भी बनाने का कोशिश किया कि उधर का जितना माइग्रेंट है वो सुबह यहाँ आता था, श्रमदान करता था, तो यहाँ पे फूल सब्जियां वगैरह सब उग रही थी, और वो फिर अपना काम पे चले जाते थे। हम स्किल ट्रेनिंग भी कर रहे थे, तो हमारा टाई अप था रेमंड टेलरिंग वगैरह के साथ, कि यहाँ पर वो बेसिक लाइफ स्किल्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेंसी वगैरह, एंड देन दे वर गोइंग इन द डेडिकेटेड सेंटर्स। और तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग हुआ, कार्पेंट्री का ट्रेनिंग हुआ। एंड द आइडिया वाज कि एक शहर में उनको एक ऐसा स्थान दे दिया गया जहां उन्हें अपनापन लगा, जहां उन्हें खुला माहौल लगा, और उन्होंने वहां श्रमदान किया, बहुत अच्छे से किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक अपनापन सा एक बड़े शहर में मिला। और मेरा यही सवाल आता है, हमने बहुत कोशिश करी कि इसको हम और एक्सपैंड करें, मगर अगर हम आज सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी इज नॉट जस्ट एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी फॉर मी इज
anything to do with humans. Or I call myself a earth empathizer. Earth empathizer इसलिए because I am also a mother, और जो हमारी धरती माँ है वो हमारी बदमाशियां देख रही है, हम जो गलत कर रहे हैं वो देख रही है. तो जैसे हम अपने बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, शायद वो भी हमें इग्नोर करती जा रही है, मगर उनकी भी सहनशीलता की कहीं ना कहीं एक चरम सीमा पहुंचेगी. और जो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं, मगर उसके लिए उसके सारे बच्चे एक जैसे हैं. तो फॉर मी बीइंग एन अर्थ एम्पैथाइजर इज नॉट जस्ट अबाउट एनवायरनमेंट्स की हम पानी बचाएं, हम कूड़ा ना फैलाएं, मगर ऑल्सो कि एक संभाव जो है कि हम सब एक हैं, और उसमें जो शहरों की एक जिंदगी है, गांव की जो जिंदगी है, क्या हम उसको एक लेवल पर ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. मेरे यही विचार हैं. और एक आखिरी चीज जो मैं सस्टेनेबल स्पेसेस में देखना चाहूंगी, और ये अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि हम यहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं. शहरों में बच्चों को प्रोविजंस जो हम कहते हैं, और अब जिस तरीके से बहुत हमको खुशी हो रही है कि हम एशियाड में 100 मेडल ले आए हैं, कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं, अच्छे के लिए बदल रही हैं. मगर गांव में, मतलब यहाँ ये मेरे घर के पास की जगह है, अभी आपको बहुत खुला खुला दिख रहा है, अभी यहाँ पे भी घर बन गया है, तो ग्राउंड्स ही नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए. और इसका विपरीत असर बहुत ज्यादा पड़ता है. हमें लगता है कि जैसे हम ड्रग एडिक्शन सुनते हैं, गेमिंग एडिक्शन सुनते हैं, ये सब चीजें गांव में बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं. मैं पहले जहाँ रहती थी, हमारे बगल के घर में ही एक अरेस्ट हुआ था एक लड़का, एंड ही वाज अ ड्रग डीलर. तो जो सस्टेनेबल स्पेसेस की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं आगे की, हमें उनके लिए ओपन स्पेसेस, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, जहां वो आके मिले, खेल कूद करें, जिससे उनकी एनर्जी एक सही दिशा में डायरेक्ट हुए. ये मेरी चौथी विश लिस्ट है. इसके साथ थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई विल बी हैप्पी टू इंटरैक्ट फर्दर. Yeah, thank you very much. And I tell you, it was a very delightful presentation. The way you covered and converged all the points, and put it in a perspective. There is one observation by Dr. Srinivas. Dr. Srinivas, he is a scientist, and he has been in various positions, and he's also a very regular attendee of our webinars. So I would like to read what he has said. Just a minute. I think you can also see it. He has said that he is stopped taking bath by showers and all that. But then he says, "Okay, how do we change the perception of the children, younger generation? How do we develop habits of resisting these conveniences?" Thanks a lot. Thanks a lot for this question. In fact, this is something in my introduction, sir ne mentioned kiya ki Karta Connect Foundation. I am one of the initial Karta. And the idea came from, we are 6 mothers, all working full time. Karta Connect is a pro bono work that we are doing. And it came from the point that what is it that we are giving while we are leaving for our children. And in fact, our children are our first set of experiments, if I can say. क्योंकि behavior change के क्षेत्र में मैंने काम करा हुआ है सर, और इतना क्लियर है कि बिहेवियर चेंज पेंटिंग करने से और एसे लिखने से और डिबेट करने से नहीं होगा. तो मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल देती हूँ, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज दिस वाज अगेन इन कोलकाता विद माय अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक रोड सेफ्टी के ऊपर प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, एंड वी वर अप्रोच्ड बिकॉज हमने ड्राइवर्स के साथ काफी काम किया था. और जब हमें अप्रोच किया गया कि ये आपका एजुकेशन एस्पेक्ट का कवर करना है, वी वर वेरी क्लियर दैट इट विल बी एटलीस्ट अ 1 year कैंपेन, बिकॉज इफ वी आर एक्सपेक्टिंग एनी, एंड इट विल बी अ सिस्टमैटिक कैंपेन. तो मुझसे बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि श्वेता, आपको 20 साल हो गए, 10 साल तो अब एक्सपेरिमेंट करते हुए हो गए, व्हाई आरंट वी सीइंग थिंग्स ऑन ग्राउंड? बिकॉज आई एम ऑफ अ फर्म बिलीवर दैट आई नीड टू हैव माय आंसर्स इन प्लेस टू लॉन्च इट एज अ कैंपेन, नंबर 1. So Safe Life Safe Drive mein, we were very clear to the government, we were working with the police there, that we will not talk to everyone. We will either talk to the drivers or to the children, and not even college children, school children. And there were interventions
बिकॉज हम उनको भाषण, मेरा खुद का बेटा बोलता है मेरे को कभी जब उनके स्कूल में कुछ होता है कि ममा यू शुड कम एंड डू द सेशन, यहाँ तो भाषण ही होता है और स्लाइड शो ही दिखा दिया जाता है. So there is something cooking. I can't put a lot of thing, but एक बच्चे के point of view से, आज की generation के point of view से इनको क्या मजा आता है. So if I can just give a teaser, जैसे पिक्चर का टीजर आता है कि a rap competition and the line is जरा सोच क्या तू है धरती पे एक बोझ, because this is the language they will understand, right? So there are a lot of things we have planned, we will do in coming times. बट उस कैंपेन ने, बिहेवियर चेंज कैंपेन ने हमें इतना वहां पे, द हेलमेटलेस डेथ वेंट टू अ 10-year low because we targeted children, we made the content keeping them in mind, and so that वो उनके फादर जब या उनकी मदर जब बिना हेलमेट के जा रहे हैं वो उन्हें रोके. तो सर का पॉइंट बहुत वैलिड है. इनफैक्ट मेरा पूरा उम्मीद ही बच्चों से है. और क्योंकि देखिए हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो घर में जो देख रहे हैं, वो जो आसपास देख रहे हैं, उनको वही लगता है. नहीं, but you see the irony that the air which they breathe is bad, the environment which they are, staying, and then there's no place to play. Look at, remember our childhoods, we were so free. Right. We were so free. When I was getting a house in Chanakyapuri, it was on the road. My son was small. I refused to take that house. I said, no, I want a playground opposite because I was scared. Right. सड़क पे चला जाएगा, कोई accident हो जाएगा. So ये limitations तो urban areas में बहुत हैं. We don't have regular so many playgrounds. And Delhi we are lucky children, to they be, do Delhi, connect with the environment. They in do. schools also there are eco clubs. Delhi के schools में eco clubs वगैरह हैं जहाँ बच्चों को, and in Delhi government I was there, so it was the plants. Every event was, there were plants which were given as, and now also I think it's very prevalent कि आप bonsai या ऐसा करें. बच्चों का connection है, but only thing In is, fact, ma'am, मेरा जो observation, हमारा system वैसा नहीं है. मेरा जो observation है, especially the other day I was in a ESG summit, right? और उसमें there was a speaker who said that being environment friendly is not even a choice for organization, not only from the consumption point of view, but also to attract talent. I don't recall it was one of the multinational, they said the younger generation are very particular about. So it is happening both way. और वही है, मगर मैं साथ में ये भी बोलूंगी कि it is not happening to the level it should happen. Right? And the younger generation does blame us कि ये तो आप ही गन फैला के जा रहे हो हमारे लिए. That is it, whatever legacy we are giving to them. It's very unfortunate. Very unfortunate. So so with Karta Connect and with me, I mean, this is where I want to put my energies into. That what interventions we can do in school and in a systematic manner. देखिए sporadic हम कुछ करेंगे कि कभी painting करा दिया, कभी debate करा दिया. It has to happen as a campaign, and I'm working on that whole thing. So once I will be ready with the answers, maybe you'll see the campaign. I'm giving myself 6 months to 1 year time. Yeah. I think I can ask Dr. Srinivas if he's there, if you would like to make. Definitely. Rohit? Thanks, madam. Yeah, he has already given rights. No, I think, Shweta is doing a wonderful thing and she is trying to educate the children there, really going down to, we all talk in the metro city sitting here, but she has taken the brunt to go there. That is wonderful, I would say. I actually, if I go back, I studied without electricity for almost 4 or 5 years. I used to fetch water with my mother a kilometer away. So we automatically understand and run to switch off the lights or reduce the water. I have in all my 5 bedrooms, I have a shower, but I use bucket. Right. I just can't use shower. So that comes to us automatically. So Shweta, when she asked this shower in between the khet, I was tempted to say that I would have put a drip irrigation system to drip the whole land. Right. In because fact, you cannot avoid the newer things coming into picture. So can you do something with it? The soap part of it, you can do something, some little treatment, and then spread it in the this thing. So that would have been my answer, Shweta. You asked the question, and PB Singh said, wait for the end. That would have been my reward. But nevertheless, my compliments to you
for Thank you, doing sir. wonderful work. Please continue to do. I think awareness is the only thing that can, even of the 100 children, if you are able to convince 5, that would be wonderful. But I slightly disagree with you on, our children are our first experiment, but they don't take, our children don't listen to us. It is other children who would listen to us. I Very, have very tutored about 50 children, 50 interns for MTech and PhD. Most of them, whoever took my advice, are doing extremely well. My children don't take my advice. They are in so their when own I said this thing. They are happy. when, That's okay. when I said they are Over an to you. experiment, they are the resistance experiment. कि कितना resist ये लोग करेगा. So it's not just they'll always listen, but yes, I mean, because there are 2-3 things that I have kind of, so this is, see, I'm no expert, but it's something I genuinely feel for, दो तीन चीजें मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ. पहला, they see you. So when I go and shop, मैं हाट में जाती हूँ, मैं मना करती हूँ, मुझे प्लास्टिक नहीं, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, हम कितना भी बोल लें, प्लास्टिक यहाँ सब जगह पॉलिथीन, and polythene is the most dangerous. Anybody who understands plastic and packaging, polythene bag is the most dangerous. When I go and then they also see me, जैसे भिंडी लेना है, तो मैं अपना एक अलग से पैकेट निकाल के उनको देती हूँ, आप इसमें दे दीजिए. तो because I have been going there, in fact where I go every day, वहाँ एक दीदी बोलती है कि सबको आपके जैसा होना चाहिए, अपना थैला लेके चलना चाहिए. So वहीं से वो आया कि लेके चल. तो in fact in Goa there is a very nice thing happening called Maka Naka Plastic, कि मुझे प्लास्टिक नहीं चाहिए. So I'm trying to collect all these good examples from all over the place. The second thing, ma'am, which is connected to skill development, and this I have seen with my own house help. See, when we are giving them job, when we are giving them economic empowerment, so abhi to we are just starting. I mean, skilling maybe there have been a lot of interventions, but imagine all these students who have gone through, unko economic ek advantage mila hai, and then when we reach out to them and say कि आप please ऐसा करिए, they will listen to us. क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैस्लो हायरार्की भी है ना, अभी तो वो नीचे हैं, अभी तो उनको अपनी नीड्स ही पूरी करनी है. So it happened in my case. My help, she used to always, क्योंकि, and at times there are fights in the house also. I'll be very frank. My husband is like, देखो तो कूड़ा वाली बनी हुई है तू, तो देखो तो कूड़ा ही इकट्ठा करना है, right? But he does helps because he is also from mountaineering background. In fact, they bring back a lot of waste. They put it as part of their budget. So my help, she one day asked me, दी आप क्यों ये इतना कूड़ा इकट्ठा करते हो? And she's very surprised because she sees we hardly have furnitures. Like right now also I'm sitting on the floor and all. So she doesn't understand that ये इतना पढ़ा लिखा होके ये ऐसा जिंदगी क्यों जी रहा है. और एक बार उन्होंने हमसे पूछ लिया कि ये आप क्यों इतना प्लास्टिक इकट्ठा करते हो. And then I told her कि ये प्लास्टिक का क्या होता है, कैसे होता है. तो जैसे पहाड़ों में गदेरा, जो एक गदेरा बोलते हैं कि जहाँ से पानी फ्लो करता है बरसातों में, तो उनको तो लगता है कि गदेरे में डाल दिया और ये चला गया, but ultimately it's going into a rivers and seas, right? Yeah. But when I told her, because somewhere she's getting economically benefited from me, right? तो उन्होंने अपने घर में करना, मैंने कहा आप मेरे को लाके दे दो, आपका वहां नहीं हो सकता, मैं तो फेंक के आऊंगी ही. So these are the small little experiments I'm doing with my own life. I call it my experiments with waste. I just want to tell you 2 things. I want to tell you. First is that are all our training modules. Am I audible? Yes, ma'am. All our training modules, we have a concept of greening. Now we cannot say that only the job which you are going to do for renewables is green. Every job has to be made green. That is the objective of this. So greening means waste minimization. We have to minimize the waste. We have to recycle the waste. We have to conserve the materials. We have to go for energy efficiency. We have to go for water. So these things are a part, whatever training the Skill Council gives for any training module. They are a part of this main, and we are trying to introduce this in all the job roles. Like every Skill Council should adopt this, because you go, whether you are making a car product or you are making a green product, waste has to be minimized, material has to be conserved. Then alternate materials, that is also the norm of the day. That is there. So the focus of Skill Council is there. We have developed qualification packs for plastic, for MRF facilities, technicians, entrepreneurs who can set up MRF facilities so that you can recycle it. So the focus is very much there.
you know. And second thing I want to tell you is in villages, we did a small project, you know, with the, when from the President House, when Honorable Pranab Mukherjee was there. So we did it in Haryana villages. There we wanted to set up MRF, but there was so much of resistance, you know, we could never get the required land for setting up the MRF. People were very distinct that they said, yes, we will collect, we will even pay some money for collection. Right. But right. we could not, you know, we were not successful. And when I used to see those dumps on the wayside, I used to feel, had we been successful in getting land, so we could have set up some MRF. So that's sort of Definitely, a, ma'am. This is there is I the, think you know, they'll come and tell you, ये झोल हमारा जो that water जो होता है वो इतना गंदा होता है, everything is going, किसी के घर के आगे गोबर पड़ा हुआ है, किसी के प्लास्टिक पड़ा हुआ है, they're all very willing के हम पैसा देंगे, आप इसको collect करवा के, you try to, but then where to dump it? The landfills are already full. right. So that's sort of a resistance. So these are two things I wanted to share with you. Yeah. No, I completely agree with you, because see, even practically, and that's why I'm saying these are my own experiments. मेरे को एक, for example, I don't drive a car. I drive a two-wheeler, right? And taking that whole waste to a facility which is 10-15 kilometers to my house is not easy. And I requested them. They said, and they had the same problem. Land is one problem. The vehicle and the transportation is another problem. And therefore, you know, where we are putting our energies is a collection system, which can be an app based and all. So there are a lot of, I'm not saying there are a lot of work happening, but it needs to close the loop, because उसके बिना behavior change, जो मेरा थोड़ा सा understanding है behavior change का, वो हो ही नहीं सकता है. Behavior change में बहुत लोग, behavior change में अभी तो even if you talk to cab people and all that, they say कि पहले लोग कैब में कूड़ा, कोई प्लास्टिक का, कोई उसका पॉलिथीन वगैरह डाल देते थे, अब लोग बाग उठा के ले जाते हैं. हाँ, and plus in Himachal, in Manali, this intervention was done by somebody we know, कि जितने भी टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, गाड़ियां हैं, उसमें वो एक बैग देते थे. एंड मेरे सामने एक बार हुआ कि वो रोड पे गिर रहे थे, मैंने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर ने कहा सॉरी दीदी मैंने देखा नहीं, और फिर उन्होंने बोला कि ये मेरा घर है, प्लीज मेरे घर को गंदा मत करिए, मैं आपको सब जगह, मतलब he literally and with the full authority he told the tourist in the car, क्योंकि वो जो उन्होंने घेरा था मैं अंदर लेके गई, वो गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने कहा ऐसा क्यों, मैंने कहा भैया आपको तो देखना चाहिए, उन्होंने फिर एकदम से ही सेड ये होता नहीं है. So that is what we want, people to take ownership. See, collection के बाद क्या होना है, वो एक बहुत बड़ा piece of the puzzle है, but at least वहां तक तो हम पहुंचे. I think Dr. Vanita Prasad, he's Dr. Vanita Prasad has raised her hand. So I already gave rights. Rohit, can you give her the rights? Dr. Vanita, good morning. So you can ask your question or your comments. So hello, ma'am. Yeah. Can you hear me? Yeah. I was not able. Yeah. So I had listened to you, and it was very nice efforts which you are putting. And since I am into this field for 30 years, but what I started doing with my kids, like sir was mentioning, being an environment person, I made a point for my kids to understand we have a lot of resources because we have fluent, but Mother Nature is not having. So that is the responsibility of every parent to make your kids aware of what they are using and why they are using. A privilege to use something, and that's very important, because हम लोग तो पढ़े हैं ना, हम तो भी वो नहीं कर रहे. And जब मैंने ये सब करना शुरू किया था, या मैं अपना थ्रो अवे लाइफस्टाइल नहीं यूज करती थी, जब प्लास्टिक आया था और मेरे बच्चों का बर्थडे पार्टी होता था, we used to buy, not used to buy that. तो बच्चों को ये भी सुनना पड़ता था कि आपकी मम्मी कंजूस है. Right, I agree with you completely. So a lot of I agree with you. As a thing, we have to be bold enough to face that, because there is something. So that is one part, and the other part is the waste which is coming. So decentralized waste management, which I always motivate or say, कि जैसे आपने कहा भी, मैम भी कह रहे हैं कि काउडंग पड़ा है कहीं. So all these waste material needs to be processed there and then. जैसे अभी बहुत सारे फैमिली बायोगैस प्लांट पहले भी आए थे, पर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो मेजर वेस्ट है, and if that is giving you energy there and then it becomes a very positive kind of. Rest of your waste
is having lesser volume. Right. Once in a month collection can be done, and Right. that's what I was doing Right. with somebody. Since I am doing it at a large scale, I was doing Fantastic. it. I was trying to the app-based modeling when we are doing for the vehicle to go, and Mhm. bringing that for biomethanation plant doesn't make any sense because वहाँ ही इतना carbon emission होता है. Right. Right. So though, and when you are talking about hill area where the terrain itself is difficult, Very difficult. very difficult. The carrying this is difficult, bringing that is difficult. So those things needs to be really thought of how to do, Right. Right. how to the lifestyle. The same thing what we are doing in a plain city is not applicable there. We need to think. Ma'am, it is 10 times more difficult because Yeah, slope, I agree. slope होता है, slope पे, like right now I have numbers of at least 10 rag pickers from Dehradun, Mussoorie, और वो slope पे नहीं उठा पाते हैं. So we are trying to work on intervention because मैंने we have देखा है slopes शिमला everywhere. में वो लोग लेके जाते हैं, मतलब एज एन टूरिस्ट आई ऑब्जर्व्ड इट नॉट फ्रॉम Right. दिस थिंग. मेरे यंग एज से मैं वो ऑब्जर्व करती हूँ, और दैट हैज मोटिवेटेड मी कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, इतने why he is doing this, why can't we do that? It is our responsibility na. But Right. problem is we had a mindset that waste is not our responsibility, and that is the behavior change we need to bring for everybody. Every adult has to be responsible for the waste he is generating. Any kind of waste. It can be your sewage, it can be your fecal sludge. You have to know where it is going and how it is managed. So वो हमारे पास है ही नहीं. That is the basic behavior change we want. And that's what I always say कि waste जो है वो resource है आपका अपना. आपको change करना है अपना mindset ये सोचकर कि वो waste नहीं है. अगर मैं सुबह pieces भी pass कर रही हूँ तो that is a resource. Once I will start looking it into that perspective, the things will change. Correct? It's a resource. So you have a portable type of plants. We had, those portable Yes, plants yes. from Syntex. हाँ, So ma'am, they can कोई- be used for hilly areas. Yeah, that can be used in hilly area. Temperature controller, and that's what I was talking to day before only कि वहां पर हम लोग कैसे maintain करें, क्या करें, because यहाँ तो ठंडा हो जाता है ना, बर्फ पड़ जाती है, तो वो भी चलाना मुश्किल है. तो सेक्रोफाइट्स कैसे आएंगे? All those are the challenges. Technological challenges, but behavior changes की जो हम बात कर रहे हैं ना मैम, वो हम सबको समझना है कि there is nothing called waste. ये जो terminology है ना waste, ये हटनी है हम सबके दिमाग में से. It's all resource. It's all resource. Even our feces, the black water which we are generating is a resource. That's what we have to come. क्योंकि उससे ना क्या हमारे पास एक वो गंदा वाला feeling आता है. Moment say waste. Rather than when we start saying it as a resource, biomethanation plant में भी segregated waste आता है. अगर हम resource की तरह माने, waste की तरह मान रहे हैं ना, तो वो नहीं आ रहा है. So behavior change when we are talking, because I am not working on to that aspect, but whosoever is working should make everybody understand everything is a resource from this planet Earth. And it is in a circular way which we need to keep on using. Yeah. Correct? Yeah. That's my state. So Thank you, Dr. Prasad. Thank you very much for your intervention. I think we've had a lot of interventions, and we had a lot of, mutually we interacted a lot. And I think we can keep on talking and talking, and there's no end to it. Yes. So I would like to take this opportunity to thank you for this beautiful interaction, and you gave us so much of an insight into your work, which I feel is wonderful, and I should compliment you that you, and I would even encourage you to continue to do it, and of course, wherever Skill Council, you are already interacting with us, and whatever Skill Council can do. Sure, ma'am. you are most welcome. And I think Mr. Arpit is there. If Mr. Arpit would like to, I was, Shweta ji, I was listening to you very carefully. And I was also listening to the question and answer session, and as well as the point of view of participants. So it was a very, very, knowledgeable and very practical presentation, and great compliments to you for all the work that you're doing along with your, community and your teammates. So
definitely we'll wait for you in SCGJ again. I think Right, you right. visited us a week back, and Yeah, a we'd week like back. to The- collaborate on other avenues in the waste management area. Sure. So So- I've left my email ID here. You know, anybody who wants Yeah. to reach, because it's we all need to come together. You know, Pareto होता है ना एक 80-20. तो जो मैंने एक जब बेसिक कोर्स में जब हमने क्लीनिंग करी थी, इट वाज एग्जैक्टली 80-20. 100 जने थे, 100 लड़कियां थी, मगर 20 लड़कियां थी जिन्होंने वैली में घुस के सारा सफाई किया है. तो वो 20 को साथ में लाना है. एंड करता कनेक्ट जो हम लोग ने एक आइडिया आया था कि डूअर्स को साथ में ले आते हैं, फिर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. सो दैट इज द होल लॉजिक. So nice. Correct, Shweta. Thank you, Shweta ji. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot for this Yeah. opportunity. Thank Thank you. you. More Mr. power PB Singh will to now ground. Yeah. take the formal vote of thanks. Yeah. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. First, I would like to thank Shweta ji for accepting our invitation for this presentation. Shweta explained very well about the water and waste management. Thank you very much. Now I would like to thank participants for the joining and for your support. Thank you all. I would like to thank Rohit for the IT support. And finally, I would like to thank Dr. Thamija ma'am and Arpit sir for the for your support. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shweta. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for listening. Thank you. Hmm.